Assalamualaikum students. I hope you all are fine. Students, as you all know that this is conversation video of month of June and July. Students, as you all know that we have completed 10 questions also from month of June and July. So now we are continuing rest of the questions. Students, as you all know that we take only 5 questions in each video. So this video also contain 5 questions. Students, I hope you all have done the previous work from the videos. This work will be done in English C copy, English conversation copy, which is called English C copy. Students, your writing should be clean and you must learn these questions. Students, मुझे पूरी उम्मीद है आप क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से याद करेंगे और उसे बहुत सफाई के साथ अपनी कॉपी में राइट डाउन करेंगे. स्टूडेंट्स, पूरी वीडियो ध्यान से सुना करें ताकि आप लोगों को तमाम चीज़ें अच्छे से समझ में आएँ और याद हो जाएं. स्टूडेंट्स, देयर आर 5 क्वेश्चंस फ्रॉम कन्वर्सेशन. क्वेश्चन नंबर 1 इज, इन विच कैंपस डू यू स्टडी? आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन. इन विच कैंपस डू यू स्टडी? आप कौन से कैंपस में पढ़ते हैं स्टूडेंट्स? Question number 2 is, where is your school situated? Question number 2 is, where is your school situated? Question number 3 is, how many classes are there in your school? How many classes are there in your school? Question number 4 is, how many sections are there of each class? How many sections are there of each class? Question number 5 is, how many shifts are there in your school? Question number 5 is, how many shifts are there in your school? So students, we will take one question in each picture. So question number 1 was, in which campus do you study? In which campus do you study? The answer is, I study in campus 1. I study in campus 1. In which campus do you study means आप कौन से campus में पढ़ते हैं? Students, as you all know that this is campus 1. Our school is campus 1. So we will answer, I study in campus 1. I study in campus 1. मैं campus 1 में पढ़ता हूँ या पढ़ती हूँ. Students, repeating the question, in which campus do you study? Answer is, I study in campus 1. Students, I hope you all like your campus, your school. And in these days, I hope you all are missing your schools, your classes, your class environment, your canteen, your assembly area, your play area. I hope you all are missing the class environment and your teachers too. We all are missing you too. So students, we are praying to God that may God help us and अल्लाह करे हमारी ज़िंदगी उसी तरीके से उसी ट्रैक पर वापस आना शुरू हो जाए जिस तरह से हम लोग आज से पहले स्कूल्स में पढ़ा रहे थे और आप लोग पढ़ रहे थे. सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 is complete. Now question number 2 is, students, these pictures are your from
primary corridor, if you remember. So question number 2 is, where is your school situated? Question number 2 is, where is your school situated? The answer is, our school is situated in FB area, block 7. Students, FB area means Federal B area, block 7. Students, where is your school situated? Answer is, our school situated in FB area, block 7. Student, you must remember, FB area means Federal B area, block 7. सवाल का मतलब है स्टूडेंट्स, आपका स्कूल कहाँ वाक़या है, कहाँ बना हुआ है? आंसर है इसका, our school situated in FB area, block 7. हमारा स्कूल FB एरिया में बना हुआ है, यानी फेडरल बी एरिया ब्लॉक 7 में वाक़या है और उधर ही बना हुआ है. स्टूडेंट्स, आई रिपीट द क्वेश्चन, वेयर इज़ योर स्कूल सिचुएटेड? आवर स्कूल सिचुएटेड इन FB एरिया ब्लॉक 7. स्टूडेंट्स, एक बात का खास ख्याल रखिएगा कि क्वेश्चन जिस तरीके से आपको पूछा जाए, आपने आंसर कंप्लीट ही देना है. ये नहीं कि स्टूडेंट से पूछा जाए वेयर इज़ योर स्कूल सिचुएटेड और वो आंसर में बोले FB एरिया ब्लॉक 7. नो, यू मस्ट से कंप्लीट आंसर, आवर स्कूल सिचुएटेड इन FB एरिया ब्लॉक 7. पूरा आंसर कहने से स्टूडेंट्स आप लोगों को वो बात हमेशा याद रहेगी, तो आप लोग पूरा आंसर कहने की आदत डालिए. Students, question number 3 is, how many classes are there in your school? How many classes are there in your school? Answer is, classes are playgroup to matric. Classes are playgroup to matric. Students, हमारे स्कूल में कितनी क्लासेस हैं ये आप सबको मालूम है. हमारे स्कूल में प्ले ग्रुप से लेकर मैट्रिक तक तमाम क्लासेस हैं. प्ले ग्रुप, फाउंडेशन 1, फाउंडेशन 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, जितनी भी क्लासेस हैं जिनको हम इस तरह से कहेंगे क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, इस तरीके से, और या फिर फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड. So class, play group to matric. How many classes are there in your school? There are 10 classes. But the answer is, classes are play group to matric. Classes are play group to matric. Students, how many classes are there in your school? Answer me. Classes are playgroup to matric. Classes are playgroup to matric. Students, please do this work in your English C copy. I am repeating these words again and again. आपको ये तमाम काम इंग्लिश सी की कॉपी में राइट डाउन करना है और अच्छे से याद करना है. स्टूडेंट्स, तमाम काम नीट एंड क्लीन करिए और तमाम काम अच्छे तरीके से याद करिए और इसी तरीके से एक दूसरे से अगर आप लोग मिलते हैं या कभी बात होती है तो अपने टीचर से इसी तरीके से जवाब दीजिए. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर ऑफ ईच स्कूल? हाउ मेनी सेक्शंस? स्टूडेंट्स, हाउ मेनी सेक्शंस आर देयर ऑफ ईच क्लास? There are 4 sections of each class. There are 4 sections of each class. Students, how many sections are there of each class? There are 4 sections of each class. There are 4 sections of each class. Students, इसका मतलब है आपकी एक क्लास के कितने सेक्शंस हैं या कितने हिस्से हैं या कितने पार्टीशंस हैं, यानी कि आपकी एक क्लास के कितने सेक्शंस बने हैं. तो हमारी एक क्लास में
तकरीबन 4 सेक्शन हैं, क्योंकि ए जैसे अगर थर्ड क्लास है तो थर्ड ए, थर्ड बी, थर्ड सी, थर्ड डी भी हो जाती है, और इस तरीके से हम लोग 4 सेक्शंस में स्टूडेंट्स को डिवाइड कर पाते हैं। तो देयर आर 4 सेक्शंस ऑफ ईच क्लास, तकरीबन एक क्लास के 4 सेक्शंस हैं। आई एम रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ मेनी सेक्शंस देयर आर ऑफ ईच क्लास? How many sections there are of each class? There are 4 sections of each class. There are 4 sections of each class. एक क्लास के तकरीबन 4 सेक्शंस हैं। स्टूडेंट्स, आई होप आपको अब तक की वीडियो समझ में आ रही होगी और अच्छे से आपको ये काम मिल गया होगा। ये काम आपका सिलेबस के अंदर प्रोवाइडेड है, आप अपने सिलेबस में से ये काम देख सकते हैं। नाउ क्वेश्चन इज, हाउ मेनी शिफ्ट्स आर देयर इन योर स्कूल? हाउ मेनी शिफ्ट्स आर देयर इन योर स्कूल? देयर आर 2 शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। देयर आर 2 शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। स्टूडेंट्स, इसका मतलब है, सवाल का मतलब कि आपके स्कूल में कितनी शिफ्ट्स हैं? तो हमारे स्कूल में 2 शिफ्ट्स हैं स्टूडेंट, एज यू ऑल नो। मॉर्निंग शिफ्ट है और आफ्टरनून शिफ्ट है। तो हम बोलेंगे देयर आर 2 शिफ्ट्स, देयर आर 2 शिफ्ट्स, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। देयर आर 2 शिफ्ट, मॉर्निंग शिफ्ट एंड आफ्टरनून शिफ्ट। स्टूडेंट्स, रिपीटिंग द क्वेश्चन, हाउ मेनी शिफ्ट्स आर देयर इन योर स्कूल? How many shifts are there in your school? There are 2 shifts. There are 2 shifts, morning shift and afternoon shift. There are 2 shifts, morning shift and afternoon shift. Students, I hope आपने तमाम 5 सवाल देखे हैं और अच्छी तरीके से आपको मैं समझा पाई, पढ़ के बता पाई, ट्रांसलेट कर पाई। स्टूडेंट्स, मुझे अपने स्टूडेंट्स से, अपने अच्छे स्टूडेंट्स से यही उम्मीद है कि आप तमाम काम बहुत अच्छी तरीके से, बहुत प्रॉपरली करके टीचर को शो करेंगे। इंडेक्स लाजमी बनाया करें और तमाम काम हैंड टू हैंड याद करने की आदत डालिए। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको मालूम है, लॉकडाउन ख़त्म होने पर है। आई होप जल्दी से ये लॉकडाउन ख़त्म हो और आप लोग स्कूल में वापस आके हमारे साथ वैसे ही स्टडी कर पाएँ जिस तरीके से आप लोग करते थे। हम लोग आपको टीच करते थे, आप लोगों के सामने फेस टू फेस हम लोग बातचीत करते थे। तो ये तमाम इन्वायरमेंट इंशाल्लाह जल्द अज जल्द वापस डेवलप होने वाला है। बट आप लोगों की जो हैबिट है, जो आदत थी काम जल्द से जल्द करने की और काम को साफ़ सुथरा करने की, और फिर साफ़ सुथरे काम के बाद आप लोग उस काम को जल्द से जल्द याद करते थे, तो आजकल ऐसा नहीं हो पा रहा है। स्टूडेंट्स, हम भी इस बात को समझ रहे हैं कि आपको स्कूल वर्क भी घर में करना पड़ रहा है, तो आपकी जो लर्निंग है वो बहुत इफ़ेक्ट हो रही है और आप अच्छी तरीके से चीज़ों को लर्न नहीं कर पा रहे हैं। स्टूडेंट्स, आप घर में ही 2 बार पढ़ने की आदत बनाइए। आप मेक श्योर करिए कि एक बार आप वीडियो देख के सारा काम उतार लें, फिर आप ब्रेक लें। आप समझ लें आपने एक बार पढ़ लिया है, अब आपको दूसरी बार पढ़ना है। जब आपने वो काम उतारा हुआ था, जो काम आपने प्रॉपर उतारा हुआ था, वो काम आप फिर दूसरी बार में याद करें। स्टूडेंट्स, आप लोग पूरा दिन घर में ही हैं। अगर कुछ स्टूडेंट्स ट्यूशन्स वगैरह जा रहे होंगे तो वो बात अलग है, मगर बाकी स्टूडेंट्स सारे घर में ही होंगे। तो आप लोग 2 टाइम पढ़ने की आदत डालिए घर के अंदर अभी इस लॉकडाउन के डेज़ में, ताकि आप लोग की हैबिट बिल्कुल उसी तरीके से रहे जिस तरीके से थी। सो स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी वीडियोस आपको समझ में आती हैं और मैं आप लोगों को अपना पूरा मैसेज जिस तरह क्लास में कन्वे कर पाती थी उसी तरीके से वीडियोस में भी कर पाती हूँ। आई होप यू ऑल गेट माई लेक्चर वेरी क्लियरली एंड प्रॉपरली, एंड आई होप कि आप लोग उसी तरीके से हमें वापस मिलेंगे जिस तरीके से हमने आपको छोड़ा था। नाउ स्टूडेंट्स, इट्स टाइम टू से गुड बाय फॉर दिस वीडियो। I will talk to you next video. Till then, Allah Hafiz.